قسط 3 خود نوشت پریشاں سا پریشاں ابھی بچپن کے واقعات ہیں۔ باجی کا بڑا بیٹا سبطین معمولی نوجوان نہیں تھا۔ ویسے تو یہ پورا گھرانہ خوش شکل اور سرخ و سفید تھا، لیکن سبطین بھائی کے مسکراتے ہوئے کچھ خد و خال مجھے اب بھی یاد ہیں۔ وہ فعال اور درد مند شخص تھے۔ محلے کے کمتر سے کمتر شخص کو بھی کوئی افتاد پڑتی تھی تو وہ بن بلائے خبر ملتے ہی مدد کے لیے بھاگے چلے آتے تھے۔ 1958 میں جب جنرل ایوب خان نے ملک میں مارشل لا نافذ کیا تھا، تب وہ قانون کی تعلیم کے سلسلے میں کراچی میں مقیم تھے، جہاں ان کی پھوپھی مشتری رہتی تھیں۔ مارشل لا میں لوگوں پہ کی جانے والی سختی کا ان کے دماغ پر شدید اثر پڑا تھا، اور پھر سننے میں آیا تھا کہ انہوں نے اونچے مکان کی کھڑکی سے کود کر خودکشی کر لی ہے۔ اب جب کبھی غور کرتا ہوں تو ان کے رویوں سے مجھے لگتا ہے کہ کہیں وہ بائیں بازو کی کسی تنظیم سے منسلک تو نہیں تھے، یا ان کا حسن ناصر شہید سے تو راہ و ربط نہیں تھا۔ ان کی لاش جب ان کے گھر پہنچی تو سبھی اشک بار تھے۔ بائی جی پہ جو بیتی اس کے بارے میں اتنا کہنا کافی ہوگا کہ وہ دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے اور ان کے کندھے جھک گئے تھے۔ ان کی بیوی خالہ زبیدہ پر تو آفت ہی ٹوٹ پڑی تھی۔ ان کی آنکھیں نم تھیں پر چیخ ناراض۔ عورتوں کے بین کرنے کے باوجود لگتا تھا یا تو ان کا بہت بڑا حوصلہ ہے یا ان پر کسی قسم کا سختات طاری ہو گیا ہے۔ بائی جی نے اپنے بیٹے کو عام قبرستان میں دفن نہیں کیا تھا، بلکہ جرنیلی سڑک کو علی پور سے منسلک کرنے والی چھوٹی سڑک پر اپنے آموں کے باغ میں دفن کر کے اس باغ کا خوبصورت دروازہ تعمیر کروایا تھا، جس پر لکھ دیا تھا سبطین باغ۔ بائی جی کے گھر سے منسلک گھر میں جو آپس میں ایک راہداری کے ذریعے ملے ہوئے تھے، ان کی بیوہ سالی رہتی تھیں۔ ہم انہیں خالہ سلمہ کہتے تھے۔ خالہ سلمہ کے مرحوم خاوند شیعہ تھے، مگر وہ خود سنی تھیں۔ ان کے ہمراہ ان کی بیٹی کنیز، جنہیں ہم آپا کجو کہتے تھے، اور ان کا بیٹا محمد علی عرف مسیطہ رہتے تھے۔ جب بائی جی نے مقامی اور مہاجر کی ریت توڑ کر ایک مقامی سید وکیل قاسم شاہ سے اپنی بیٹی یعنی آپا نجو نرگس کا بیاہ کیا تو کچھ ہی دنوں بعد آپا کجو کو ذہنی اختلال ہو گیا تھا، مگر کچھ عرصے بعد وہ ٹھیک ہو گئی تھی۔ ان کا بیاہ پاکستانی فوج کے ایک میجر صفدر علی سے ہو گیا تھا، جو بعد میں کرنل ریٹائر ہوئے تھے، اور ان سے میری آخری ملاقات ان کے شادمان ٹاؤن لاہور والے گھر میں تب ہوئی تھی جب میں اسکول ختم کرنے کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں داخل ہو گیا تھا۔ اگرچہ ہماری والدہ ان دونوں گھروں میں جاتی تھیں اور دونوں سیدانی خالہوں کا ہمارے ہاں بھی آنا جانا تھا، مگر ہماری ماں کے خالہ سلمہ سے گاڑی چلتی تھی، شاید اس کی وجہ ہم منسلک ہونا ہو۔ خالہ سلمہ بہت نرم گفتار اور دھیمے مزاج کی خاتون تھیں۔ ان دو گھروں کے علاوہ ہماری والدہ محلے کے گھروں میں بس تب ہی جاتی تھیں جب کسی کے ہاں میلاد شریف میں انہیں واز کے لیے بلایا جاتا تھا۔ خالد جی کے بیٹے بھائی محمد علی مسیطے کی آواز بہت پرسوز تھی، اور وہ محرم میں بڑی رقت سے مرثیہ پڑھا کرتے تھے۔ خالہ سلمہ نے سنی العقیدہ ہونے کے باوجود نہ صرف اپنے بیٹے کو باپ کے مسلک سے نہیں روکا تھا، بلکہ وہ ہر برس شام غریباں کے شروع ہونے سے پہلے عزاداران کو شب دیگ کی نیاز بھی دیا کرتی تھیں، اور 8-9 محرم کی راتوں کو ہی شب دیگ تیار ہونا شروع ہو جاتی تھی، جس میں گوشت، تمام سبزیاں اور تمام دالیں ہوتی تھیں۔ اس سے زیادہ خوش ذائقہ کھانا میں نے کبھی نہیں کھایا۔ ممکن ہے اس ذائقے کے ساتھ میرا ناستلجیا منسلک ہو۔ ہمارا گھر راسخ العقیدہ دیوبندی گھرانہ تھا، مگر ہماری ماں ہمیں 22 رجب کے کنڈے کھانے کے لیے بائی جی اور خالہ سلمہ کے گھر خود کہہ کر بھیجا کرتی تھی۔ ایک تو میں فطری طور پر رقیق القلب واقع ہوا ہوں، دوسرے اہل تشیعوں کے تعزیے، مجالس، ماتم، سوگ، مولیاں اور مختلف مذہبی رویے مجھے رومانوی سے لگتے تھے، جیسے ایک خاص عمر میں پہنچ کر روشن خیال نوجوانوں کو ہندو مت اور بالخصوص بدھ مت کی رسوم پرکشش لگنے لگتی ہیں۔ بائی جی مجھے پیار سے کہتے تھے کہ تم شیعہ ہو جاؤ تو میں ایک کنواں تمہارے نام لگا دوں گا اور بڑی خوبصورت لڑکی سے تمہاری شادی کروا دوں گا۔ ایک تو ہمارے ابا کاروبار کے سلسلے میں گھر سے باہر رہا کرتے تھے، دوسرے والدین کا آپس میں سلوک نہیں تھا۔ مجھے بائی جی میں بہت بابتہ لگتی تھی۔ لالچ تو اپنی جگہ ہوگا ہی، مگر تجسس کے باعث میں 3ری یا 4تھی جماعت میں یاد نہیں اپنے طور پر امام خانے میں مجلسیں سننے جایا کرتا تھا، اور امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں پر ہونے والے مظالم کا سن کے خوب رویا کرتا تھا۔ ایک بات مجھے بہت متعجب کرتی تھی کہ مولانا سید منظور حسین کا آواز سن کر میرے ارد گرد موجود بڑی عمر کے شیعہ حضرات بہت ہائے ہو کر کے روتے تھے، مگر آنکھوں سے ہاتھ یا رومال ہٹاتے ہی نہ تو ان کی آنکھوں میں آنسو کا ایک بھی قطرہ ہوتا تھا اور نہ ہی ان کے چہرے سے دکھ کے آثار مترشح ہوتے تھے۔ بہرحال میں مولیاں، امام زامن وغیرہ لا کر گھر میں چھپا دیتا تھا
और मजलिस या जुलूस में जाते हुए जेब में छुपा कर ले जाता था। 7 मुहर्रम हमारे अलीपुर में मेहंदियाँ निकालने की रात होती है। मैं मोहल्ले के किसी घर से, गालिबन औलादरी साहब के घर से निकलने वाली मेहंदी के साथ साथ गले में मौली लटकाए, बाजू पे इमाम ज़मान बांधे, अज़ादारों के साथ मातम करता हुआ अपने घर के सामने से बिला धड़क गुजर रहा था कि मेरे बड़े भाई ने गली के मोड़ पर मेरा बाजू पकड़ लिया और मुझे घर ले जाना चाहा। भाई कराम शाह ने उनसे मेरा हाथ छुड़ाया और बोले, भाई शुएब, एक को तो हमारे साथ रहने दो। भाई शुएब हंस दिया और कहा, अच्छा भाई ले जाओ। मैं खासी देर बाद घर लौटा था और मुझे कोई डांट टपट नहीं हुई थी। आज की फ़िरका वाराना फ़िज़ा और तअस्सुब की शिद्दत को देखकर अजीब लगता है। रवादारी और बर्दाश्त को ख़त्म किया जाना आलमी सियासत का एक हिस्सा है जिसे जान छुड़ाने के सभी जतन किए जाने चाहिए। 8 और 9 मुहर्रम मैंने मजलिसें सुनकर और मातम करके गुजारे। इन 1-2 दिनों में मैंने अपने छोटे भाई अवैस को भी अपने साथ लगा लिया था। वो था ही छोटा और मेरी बहुत सुनता था। अशरा के रोज़ हम सारा दिन मातमी जुलूस के साथ मातम करते रहे। शाम को ताज़े वापस इमाम खाने में आकर सुलाया गया। शब देग बांटी जाती थी और बड़ा दरवाज़ा बंद करके उसमें बना छोटा दरवाज़ा खोल दिया जाता था, जिसमें से गुजरने वाले हर शख्स को एक नान पर शब देग का सालन रखकर दे दिया जाता था। इमाम खाने के सहन में मुझसे अवैस बिछड़ गया। अंदर जितना ढूंढ सकता था ढूंढा और निकलने लगा तो मेरे हाथ पे भी नान रख दिया गया। मैंने फ़ौरन ही साथ खड़े हुए फ़कीर को नान दे दिया। घर की जानिब चंद कदम ही किया होगा कि खैरपुर दरवाज़े की तरफ से भाई शुएब आते दिखाई दिए। एक तो थे ही गुस्से वाले, दूसरे मैं वैसे ही छोटे भाई की गुमशुदगी से भौंचकाया हुआ था। मैं उन्हें देखते ही रोने लगा। उन्होंने मेरा टेढ़ा किया हुआ बाजू पकड़ लिया और कहा, चलो चलो फ़लाँ कुम्हार के पास। उन्होंने समझा था कि हजूम में मेरा बाजू टूट गया है। मैंने रोते हुए कहा, मेरा बाजू ठीक है, अवैस गुम हो गया है। उनका गुस्सा जो मेरा बाजू टूट जाने के खदशे से हवा हो गया था, एक लम्हे में अवध कर आया और उन्होंने मेरा बाजू छोड़कर मेरे गाल पर इतने ज़ोर का थप्पड़ रसीद किया कि मैं चकरा कर दूर जा गिरा था। वो शायद सारा दिन गायब रहने पर बहुत पीटते, लेकिन एक आदमी ने दौड़कर उनको कमर से पकड़ लिया और कहा, छोड़ो छोड़ो भाई, बच्चा है। भाई झंझला के रह गए और मैं भागता हुआ घर पहुंचकर बहन की पनाह में पहुंच गया था। बाद में पता चला कि अवैस ये समझा था कि मैं गुम हो गया हूँ और हाथ पे नाम धरे जब चौक में पहुँचा तो भाई शुएब गली से निकल रहे थे। चूँकि अवैस बहुत छोटा था, 5-5.5 साल का होगा, उन्होंने उसका हाथ चौक में हुक्का पीने वाली चौपाल के सामने फैला कर कहा था, देखो देखो शियों का फ़कीर। अगरचे ये फ़करा गुस्से में कहा गया था, लेकिन इस कदर कम उम्र में बच्चे की तौहीन नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे की नफ्सियात पर दूर रस असरात मुरतब होते हैं जो बिलअमूम मनफी होते हैं। लेकिन इन मनफी असरात की तक़सीर बाज़ औक़ात मस्बत नताइज की हामिल भी हो सकती है। माजी ही तो लिखता है मुस्तक़बिल को, हाल तो घूंघट होता है ऐसी कंवारी लड़की का जिसको दुल्हन बनाने की बस साजिशें की जाती है। माजी तो उस्ताद है जिसके हाथ में डंडा है, या फिर ढीली ढाली ज़ुबान। माजी ही तो लिखता है मुस्तक़बिल को। मुस्तक़बिल एक ऐसा मक़तल जिसमें ना कोई फांसी घर, ना कोई जिल्लाद, शीशा 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 शीशा। हाँ, माजी ही तो लिखता है मुस्तक़बिल को। जिस जानिब भाई शुएब गलतफहमी में कुमार से मेरा बाजू बंधवाने जा रहे थे, वो जगह भी खैरपुर दरवाज़े का एक मुकाम था। बड़े दरवाजे के साथ मकबूल का घर था, मकबूल कुरैशी का घर था। उसके बाद एक बैठक और फिर एक छोटा सा दरवाज़ा, जिसे अलीपुर के छोटे दरवाज़ों में इसलिए शुमार नहीं किया जा सकता था क्योंकि एक तो ये बहुत छोटा था, दूसरे इसके पट मुस्तकिल तौर पर मिट्टी में जम चुके थे, बंद नहीं हो सकते थे, खुले ही रहते थे। दरवाजे में दाखिल होकर पहाड़ी की तरह एक कच्ची गली ऊपर तक जाती थी, जहाँ फ़ौरन ही कुम्हारों वाली मस्जिद की 10-11 सीढ़ियाँ शुरू हो जाती थीं। इस मस्जिद के खतीब और इमाम मौलवी अब्दुर्रहमान साहब थे। उनके सूखे हुए चेहरे पर गहरी गंदमी रंगत के बावजूद वाकई नूर बरसता था। वह तक़वा और क़नाअत की मुजस्सम तस्वीर थे। बहुत आहिस्ता आवाज़ में बड़े धीरे से बोलने वाले शख्स थे। उनके बड़े बेटे अब्दुल करीम बड़े भाई मिर्ज़ा मोहम्मद शफ़ीक़ के गहरे दोस्त थे और उन्हें हम भाई कहा करते थे। और उनका छोटा बेटा जो आफत का परकाला था, अब्दुल रशीद, बड़े भाई के सहने वाले घर के कमरे की छत पर अब्दुल गनी नियाज़ी की बहन छोटों के छोटे से बड़े बेटे मोहम्मद बशीर उर्फ सीरा के साथ कबूतर उड़ाया करता था। दोनों ने मिलकर वहाँ कबूतरों का डरबा बनाया हुआ था। हम भी कभी कभार डरते डरते छत पर चढ़ जाया करते थे, क्योंकि कच्ची छतें पाँव तले इस तरह दबती थी जैसे टूट ही तो जाएंगी। मुख्तलिफ़ रंगों और मुख्तलिफ़ किस्मों के पर फैलाए गुटर गूँ करते हुए कबूतर बहुत अच्छे लगते थे। रशीद जब बड़ा हुआ तो पेशेवर पहलवान बन गया था। मस्जिद उसी सतह पर बनी हुई थी जिस पर कुम्हारों के बर्तन पकाने वाली भट्टी थी। भट्टी जहाँ ख़त्म होती थी उसके सामने एक धंसा हुआ कच्चा कमरा था जिसमें एक चाक था।
जहाँ बूढ़ा होता हुआ कारीगर बड़ी महारत से गारे की मुट्ठी भरकर बर्तन में डालता था। चाक की गर्दिश, चाक के गढ़े में चाक चलाता हुआ उसका पाँव, गारे से चिकने बर्तन में ढलता हुआ गीली मिट्टी का तहर्रुक, कारीगर के नंगे बदन पर पसीने की बूंदें और बर्तन को एक धागे की काट और हाथ से चाक से जुदा करने का मंजर इस कदर कैफ आगी होता था कि मैं अक्सर जाकर उस कमरे की खिड़की पर लगे सरियों को थाम कर इस तख्लीक के अमल को घंटों देखा करता था। मेरा तजस्सुस देखकर बाज़ औक़ात कारीगर मुझे अंदर बुलाकर बिठा लेता था। फिर वहाँ बैठकर मैं दरवाजे और खिड़की की सरियों में से चाक पे गुदते बर्तनों के साथ कुम्हारों के गधों पर लदे हुए बर्तनों के साथ उन्हें जाती या गधों की कमर पर पड़े आथरों में चिकनी मिट्टी भरे लाते हुए भी देखता था। उदास आंखों वाले गधे बोझ चले दबे चलने से इनकारी होते थे। यूँ लगता था जैसे ग़ुलामी से बेजार हैं। ज़ुबान की चख चख की मखसूस आवाज़ के साथ हाँकने वाला कुम्हार बज़्ज़ात खुद ज़िंदगी से तंग दिखाई देता था और बाज़ औक़ात गधे के सुरैनों पर कपची जड़ देता था। कुछ गधों के जिस्म के हिस्से से इस हिस्से पर ज़ख्मी होते थे। इनके ज़ख्मों पर पड़ने वाली ज़द से मेरे पेड़ों और खस्सियों में दर्द की लहर उठती थी और ऐसे मौक़ों पर मैं वहाँ से तेज़ी से निकल जाता था। बाईजी के घर से खैरपुर गेट की जानिब देखो तो महसूल चुंगे के सामने से शहर के गिर्द का रास्ता गुजरता था जो बाद में सड़क बना दी गई, यानी सर्कुलर रोड। क्योंकि अंदरूनी शहर का मजमूई इलाका बाहर से एक गुलाई में है। इस रास्ते से मिलने वाली बगली सड़क के किनारे एक वसी और ईंस हवेली हुआ करती थी, जिसके बैरूनी दालान में एक चारपाई पर हमेशा ही एक इंतहाई ज़ईफ़ शख्स दराज रहते और हुक्का गुड़गुड़ाते रहते थे। हम लोग उन्हें बड़ा अब्बा कहते थे। वो अली रज़ा अज्जो और तौहीदा छम्मन के दादा थे। उनके वालिद नज़ीर नकवी साहब तो लाहौर में सेटलमेंट के महकमे में मुलाजिम थे और कभी कभार ही आते थे। वो बड़े तरहदार शख्स थे। खड़ा पजामा, सियाह अचकन, नफासत से बने हुए बाल, लंबा कद और हल्की हल्की मूछें। बाद में जब उन्हें याद करता था तो मेरी आंखों के सामने मोहम्मद अली जिन्ना की नौजवानी की तस्वीर ही आती थी। उनसे हमारी ज़्यादा दुआ सलाम नहीं थी क्योंकि आने जाने वाले शख्स थे। अलबत्ता उनकी बीवी, उनकी वालदा यानी बड़ी अम्मी, मतलब है दादी और बेटा बेटी ऐसे थे जैसे हमारे घर के अफराद। अज्जो, जो मुझसे 5-6 बरस बड़ा होगा, हमारे घर की दीवार पर चढ़कर घर के सहन में लगी बेरी की टहनियाँ हिलाकर मेरे और अवैस के लिए बेर गिराया करता था। चम्मन हमारे लिए बड़ी बहनों ज़मीरा खालदा की तरह ही बहन थी। वो उनकी हम जमात और गहरी सहेली थी। छोटा भाई तो बहनों को बाजी कहकर ही पुकारता था, लेकिन मैं लाडला होने की वजह से बहनों को नाम लेकर ही बुलाता था और छम्मन को छम्मन ही कहता था। हमारे घर के दस्ती नलके का पानी बहुत ठंडा होता था, इसलिए छम्मन की दादी गर्मियों में हमारे घर आकर नहाया करती थी। मैं 4 बरस का हूँगा और नलके के नीचे बाल्टी रख के कच्छा पहने उछल उछल के इसको मज़ीद भर रहा था ताकि ठंडे पानी से नहाने के मज़े लूँ। दादी ने मुझे कहा, हटो मैं अपने नहाने का डोंगा पाक कर लूँ। वो मेरी बाल्टी पर ही अपना डोंगा धोने लगी और उनका डोंगा उनके हाथ से छूट कर मेरी बाल्टी में जा गिरा। हाय हाय, मेरा डोंगा प्रीत हो गया, दादी बोली। मैंने रोते हुए कहा, दादी ने मेरी बाल्टी नापाक कर दी। वो भिन्ना कर रह गई कि बालिश भर का बच्चा उनके डोंगे का बाल्टी में गिर जाने का बुरा बना रहा है। अब लगता है कि या तो ये मेरा रद्द अमल था कि अगर आपका डोंगा मेरी बाल्टी में गिर कर पलीद हो सकता है तो मेरी बाल्टी आपके डोंगे से नापाक हो सकती है, और या फिर मुझे वाकई ऐसे लगा हो क्योंकि तब मुझे बहुत बूढ़ी औरतें अच्छी ही नहीं लगती थी। क्यों, कुछ मालूम नहीं, बस नहीं लगती थी। उसके बाद दादी ने मुझे मुंह नहीं लगाया और ना ही मैं कभी उनके मुंह लगा था।